everyone. Welcome to the economics class. I am Amita Singh and I am absolutely thrilled to start this journey with you all. Here at the economics class, our mission is simple: to make economics accessible and enjoyable for the students of all levels. Whether you are a high schooler or a college student preparing for a competitive exam, this channel is for you all. So our very first topic is theory of demand. In the theory of demand, we'll start by looking at why it exists and its categorization into traditional theory and modern theory. This class will only cover the traditional theory of demand. Under the traditional theory, we'll study about the consumer behavior and its two approaches: cardinal utility approach and ordinal utility approach. So the theory of demand. As the law of demand suggests, when price increases, demand usually falls. जब price बढ़ता है, तो demand decline करने लग जाती है. But क्या सिर्फ प्राइस इकलौता फैक्टर है जो डिमांड को डिटरमाइन करता है? Does price alone determine how much quantity people want to buy? So the answer is no. Demand is determined by many factors like income of the consumer, taste and preferences, price of the related goods, etc. So demand has a multivariate relationship. So the purpose of the theory of demand is to determine the various factors that affect the demand, like own price of the commodity, consumer income, price of the other commodities, consumers' taste and preferences, etc. As I told you, theory of demand is categorized into two parts: traditional theory and modern theory. And this video is limited to the traditional theory of demand. The traditional theory of demand has focused on the four determinants. कौन से? First one is price of the commodity. Second one is price of the related goods. Third is income of the consumer. And fourth one is taste and preferences of the consumer. ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ डिमांड जो है वो सिर्फ इन्हीं चार फैक्टर्स को कंसीडर करती है. सो हियर आर द फ्यू अजम्पशंस ऑफ द ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ डिमांड. पहला क्या है? द ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ डिमांड एग्जामिन्स ओनली द फाइनल कंज्यूमर डिमांड फॉर ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स. क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये थ्योरी सिर्फ फाइनल कंज्यूमर डिमांड के बारे में बात करती है, इन्वेस्टमेंट डिमांड के बारे में या इंटरमीडिएट गुड डिमांड के बारे में नहीं. Second is it is partial in its approach. It is partial in its approach. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि एक मार्केट की डिमांड दूसरे मार्केट की डिमांड से इंडिपेंडेंट है. So according to this theory, demand in one market is isolated from the condition of demand in other market. Demand in one market is isolated from the condition of demand in other market. And the third assumption is this theory assumes that firms sell their products directly to the final consumer. मतलब जो प्रोड्यूसर है वो अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट फाइनल कंज्यूमर को बेच रहा है, किसी मैन्युफैक्चरर को नहीं. ओके, सो शॉर्टकमिंग और लिमिटेशंस ऑफ द ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ डिमांड. अब देखो, टोटल डिमांड इज इक्वल्स टू फाइनल डिमांड प्लस इंटरमीडिएट डिमांड, एंड फाइनल डिमांड इज इक्वल्स टू कंज्यूमर डिमांड प्लस डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट गुड, है ना. टोटल डिमांड क्या है? फाइनल डिमांड एडिशन है फाइनल डिमांड और इंटरमीडिएट डिमांड का. और फाइनल डिमांड जो है वो एडिशन है कंज्यूमर डिमांड और डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट गुड का. लेकिन ट्रेडिशनल थ्योरी इनमें से सिर्फ कंज्यूमर डिमांड के बारे में बात करती है. ओके, सिर्फ कंज्यूमर डिमांड के बारे में.
यहाँ पे इंटरमीडिएट डिमांड एंड डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट गुड के बारे में बात ही नहीं हो रही है। तो टोटल ओके हाँ, सो फाइनल डिमांड इज इक्वल्स टू कंज्यूमर डिमांड प्लस डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट, जिसमें से ट्रेडिशनल थ्योरी सिर्फ कंज्यूमर डिमांड के बारे में बात करती है। पूरा टोटल कंज्यूमर डिमांड क्या है कि वो कुछ फ्रैक्शन है टोटल डिमांड का, पूरा टोटल डिमांड तो नहीं है, इट इज द फ्रैक्शन, सम फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिमांड। सो ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ डिमांड डज नॉट इंक्लूड टोटल डिमांड कंप्लीटली, टोटल डिमांड का कुछ फ्रैक्शन है। सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ डिमांड। So theory of consumer behavior. The traditional theory of demand start with the examination of the behavior of the consumer. So traditional theory का सबसे पहला टॉपिक जो है वो है theory of consumer behavior. अब consumer behavior में we're going to study about market demand and individual consumer demand. Okay. So market demand क्या होता है? Market demand is the summation of the individual consumer. Market demand क्या है? है ना, मार्केट डिमांड क्या है? समेशन ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर डिमांड। सपोज करो there are 5 consumer in a market, 5 consumer in a market, okay. So first consumer की डिमांड D1 है, फर्स्ट कंज्यूमर की डिमांड D1 है, सेकंड कंज्यूमर की डिमांड D2 है, थर्ड कंज्यूमर की डिमांड D3 है, फोर्थ कंज्यूमर की डिमांड D4 है एंड फिफ्थ कंज्यूमर की डिमांड D5 है। तो टोटल मार्केट डिमांड कितनी होगी? D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5, है ना। टोटल मार्केट डिमांड क्या हो जाएगी? हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का डिमांड का एडिशन टोटल मार्केट डिमांड होगा। सो वी कैन ऑल्सो राइट दिस लाइक दिस, ओके। टोटल मार्केट डिमांड इज इक्वल्स टू समेशन डी आई, वेयर आई इज इक्वल्स टू 1 to 5, राइट। सो दिस इज टोटल मार्केट डिमांड। So we will first examine the derivation of the demand for an individual consumer. सबसे पहले हम इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड को डिराइव करेंगे। So here are the few assumptions related to the consumer. First one is consumer is assumed to be rational. रेशनल का क्या मतलब है? यहाँ पे रेशनल का मतलब है कि कंज्यूमर हमेशा अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज या यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा। ओके, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन इज द द कंज्यूमर इज अज्यूम टू बी रेशनल। रेशनल मतलब कंज्यूमर हमेशा अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने की ही कोशिश करता रहेगा। कंज्यूमर का मोटिव क्या है? यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना। सेकेंड assumption इज फुल नॉलेज ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू हिज डिसीजन। अब ये अज्यूम किया जाता है कि कंज्यूमर को मार्केट से रिलेटेड, अपने गुड से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन है, उसको फुल नॉलेज है मार्केट की, अपने गुड की, वो कमोडिटी जो परचेज करने वाला है, वो जो भी डिसीजन लेने वाला है वो उस फुल नॉलेज के बेसिस पे ले रहा है। ओके, एंड द थर्ड assumption इज, अच्छा जैसे मैंने बताया कि कंज्यूमर का क्या मोटिव होता है? यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना। अब सपोज करो कंज्यूमर के पास दो बंडल हैं, B1 एंड B2। ओके, अब कंज्यूमर इन इन दोनों में से इसमें से कोई एक ही बंडल चूज कर सकता है।
अब कंज्यूमर कौन सा बंडल चूज करेगा? ऑफ कोर्स दैट वन जो उसको, जिसमें उसको ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी, जिसमें उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, है ना, जिसकी यूटिलिटी ज्यादा होगी। ओके, लेकिन अब वो ये कैसे डिसाइड करेगा कि किसकी यूटिलिटी ज्यादा है, किस बंडल की यूटिलिटी ज्यादा है ना? B1 की ज्यादा है यूटिलिटी B2 से, या फिर B2 की यूटिलिटी ज्यादा है B1 से, ये कैसे वो डिसाइड करेगा? ऑफ कोर्स बाय कंपेयरिंग, है ना, बाय कंपेयरिंग। So there are two approaches of comparison of utilities. First approach is cardinal approach and second is ordinal approach. Cardinal approach was given by Alfred Marshall. Neoclassical economist थे Alfred Marshall. उन्होंने ये कार्डिनल अप्रोच दिया था। अब कार्डिनल अप्रोच क्या बोलता है? कार्डिनल अप्रोच स्टेट्स दैट वी कैन मेजर यूटिलिटी इन मॉनेटरी टर्म्स और बाय इमेजिनरी यूनिट कॉल्ड यूटिल्स। हम कार्डिनल अप्रोच क्या बोलते हैं कि हम अपनी यूटिलिटी, अपनी सेटिस्फैक्शन को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। ओके, अपने सेटिस्फैक्शन को हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, या फिर यूटिल्स, यूटिल्स एक इमेजिनरी यूनिट है, इस टर्म में हम, इस टर्म्स, इन दोनों टर्म्स में हम अपनी यूटिलिटी को, अपनी सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं। वेयर एज ऑर्डिनल, लाइक सपोज मेरे पास दो बंडल हैं B1 एंड B2। अब मैं इन दो बंडल्स की यूटिलिटी को मेजर कर सकती हूँ। लाइक मुझे 5 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिला बंडल 1 से, सॉरी यूटिल, हाँ 5 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिला बंडल 1 से एंड 10 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिला मुझे बंडल 2 से। तो मैं इस यूटिल और मॉनेटरी टर्म में अपनी सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकती हूँ। दिस वॉज कार्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच क्या कहता है? दिस अप्रोच स्टेट दैट यूटिलिटी कैनॉट बी मेजर्ड इन न्यूमेरिक टर्म। मतलब हम नंबर्स के टर्म में अपनी यूटिलिटी को नहीं मेजर कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी रैंक और ऑर्डर। हम अपनी यूटिलिटी को नंबर्स के टर्म पे तो नहीं मेजर कर सकते हैं, पर हम अपनी यूटिलिटी, अपनी सेटिस्फैक्शन को रैंक कर सकते हैं या फिर ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, सपोज जैसे मेरे पास 5 बंडल्स हैं B1, B2, B3, B4 एंड B5। अब मैं रैंक कर सकती हूँ अपने प्रीफरेंसेस के अकॉर्डिंग। सपोज मुझे B3 से सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला, फिर B4 से, देन B2, देन B5 and then B1. So the highest level of satisfaction which I am getting is from bundle B3. उसके बाद B4 से, उसके बाद B2 से and so on. तो इस तरीके से मैं अपने प्रीफरेंसेस को या फिर अपनी सेटिस्फैक्शन को रैंक कर सकती हूँ, बट न्यूमेरिक टर्म में मैं मेजर नहीं कर सकती हूँ। ये था ऑर्डिनल अप्रोच। दिस अप्रोच वाज गिवन बाय एलन एंड हिक्स। Okay, so the cardinal utility theory. So there are few assumptions of the cardinal utility theory. First is rationality. As I told you, consumer rational होता है, वो हमेशा यूटिलिटी मैक्सिमाइज, अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करने के बारे में ही सोचेगा। ठीक है, गिवन हिज बजट कंस्ट्रेंट। द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज मेजरेबल। अब कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में क्या पढ़ा था हमने कि हम अपनी यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, इन मॉनेटरी टर्म्स, ओके, इन न्यूमेरिक टर्म्स। Okay, so this is the very important assumption of cardinal utility theory. Constant marginal utility of money. अब इसका क्या मतलब है? अब इस थ्योरी में मनी को एक स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट माना है, एंड द एसेंशियल फीचर ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज दैट इट नीड्स टू बी कांस्टेंट। सो व्हाट डज वी मीन बाय स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट? अब क्या बोला गया यहाँ पे? मनी को एक मेजरिंग यूनिट, एक स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट माना गया है ना? और एक स्टैंडर्ड यूनिट होने का क्या मतलब है? कि वो कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा, है ना? इट मींस दैट एवरीवन हैज द सेम अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइज, वेट एंड देयर प्रॉपर्टीज, है ना? अगर अब मैं बोलूं कि मेरा वेट 50 kg है, सपोज माय वेट इज
50 kg, है ना। तो kg क्या है? kg एक स्टैंडर्ड यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है, मतलब अब kg चेंज तो नहीं होगा हर एक पर्सन के लिए, चाहे वेदर इट्स मी और कोई और हो, उसके लिए kg का क्या मतलब है? 1000 ग्राम, है ना। ऐसा तो है नहीं कि मेरे लिए kg का मतलब 1000 ग्राम है और किसी और के लिए 1 kg, सॉरी 1 kg का मतलब 2000 ग्राम है, नहीं ना। सबके लिए 1 kg का मतलब 1000 ग्राम ही है। सो स्टैंडर्ड का यही मतलब होता है, स्टैंडर्ड मतलब होता है कि वो कांस्टेंट रहेगा, हर किसी के लिए कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। एंड द फोर्थ assumption इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे जैसे हम अपना कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं, हाँ, उससे डिराइव होने वाली यूटिलिटी डिक्लाइन करने लग जाती है। दिस इज व्हाट डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके बारे में अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। Now, cardinal utility can be further classified as total utility and marginal utility. So, total utility. It is the sum of total or aggregate level of satisfaction that a consumer experience from consuming given units of goods and services. Consumer को total satisfaction जो मिलता है after consuming the given level of goods or services, वो है total utility, है ना। Suppose करो this is a given level of good, ठीक है। अब ये कोई गुड है जिसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब मैं जब इस पार्ट को कंज्यूम करूंगी तो मुझे MU1 लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, इस पार्ट को कंज्यूम करूंगी तो MU2, MU3 एंड MU4। ओके। सो टोटल यूटिलिटी क्या होती है? टोटल यूटिलिटी होती है जब मैं इस पूरे होल को कंज्यूम कर रही हूँ, इस पूरी होल कमोडिटी को कंज्यूम कर रही हूँ, तो इससे मिलने वाला टोटल सेटिस्फैक्शन ही मेरी टोटल यूटिलिटी है। तो टोटल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 एंड MU4। ओके। सो दिस इज टोटल यूटिलिटी। अब अगर हमारे पास n यूनिट्स ऑफ कमोडिटी है तो MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 एंड सो ऑन। सो टोटल यूटिलिटी इज द समीशन ऑफ MUI, I is equals to 1 to n. Okay. Now what is marginal utility? The added satisfaction that a consumer gets from having one more unit of good or service is known as marginal utility. इसका क्या मतलब हुआ? सपोज करो किसी कमोडिटी का 5 यूनिट कंज्यूमर ने कंज्यूम किया, 5 यूनिट कंज्यूमर ने कंज्यूम किया, तो इससे अभी उसकी टोटल यूटिलिटी क्या है? 15, ठीक है, 15 यूनिट। अब उसने अपना कंजम्पशन 1 यूनिट से बढ़ा दिया, अब उसने उसी सेम कमोडिटी का 1 यूनिट एक और कंज्यूम कर लिया, तो अब उसने कितने यूनिट कंज्यूम कर लिए? टोटल 6 यूनिट। तो नाउ हिज टोटल यूटिलिटी इज 18 यूनिट, है ना। तो अब ये 1 यूनिट कंजम्पशन जो उसने बढ़ाया है, 5 से 6 पे आया ना, वो 1 यूनिट कंजम्पशन उसने बढ़ाया है, तो इसकी वजह से जो उसके टोटल यूटिलिटी में चेंज आया, दैट इज योर मार्जिनल यूटिलिटी। TU2 minus TU1, that is 18 minus 15, which is equals to 3 unit. So this 3 unit is your marginal utility, है ना। मैथमेटिकली यहाँ पे देखो, marginal utility is equals to TUN minus TUN minus 1, और marginal utility is equals to change in total utility due to change in quantity. Change in, ये क्या बता रहा है? TU minus T1 क्या बता रहा है? Change in total utility due to change in quantity. ये 6 minus 5 क्या बता रहा है? Change in quantity, है ना। तो this is your marginal utility. So we can also write like this: marginal utility is equals to change in total utility due to change in quantity. Now the relationship between total utility and marginal utility. So the relationship between total utility and marginal utility indicates that when MU decreases, when MU this
दिस mu डिक्रीज कर रहा है. व्हेन mu डिक्रीजेस tu इंक्रीजेस बट एट अ डिमिनिशिंग रेट. अब देखो यहाँ पे tu क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट. ये बेंट कर्व है, ये शो कर रहा है कि हमारा tu इंक्रीज तो कर रहा है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट. ठीक है. एंड व्हेन tu इज एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट. अब जब tu यहाँ पे देखो tu अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया है, तो यहाँ पे हमारा mu क्या है, 0. अब जैसे ही tu हमारा डिक्लाइन करने लगेगा, mu हमारा नेगेटिव हो जाएगा, है ना. इस अब मैक्सिमम पॉइंट के बाद अब हमारा tu डिक्रीज कर रहा है, तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, नेगेटिव हो गई. राइट. नाउ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ये लॉ एच.एस. गॉसिन ने दिया था, इसलिए इसको गॉसिन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी बोलते हैं. अब क्या है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? This law states that as quantity consumed of a commodity goes on increasing, the utility derived from each successive unit consumed is goes on decreasing. क्या हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं, तो हर एक एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी हमारी डिक्रीज करने लग जाती है, डिक्लाइन करने लग जाती है. ओके. सो इसको सपोज अब देखो, जब हमने 1 यूनिट कंज्यूम किया, किसी भी कमोडिटी का पहला यूनिट कंज्यूम किया, तो उससे मिलने वाली हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी थी, 10, है ना. जब उसी सेम कमोडिटी के हमने 2 यूनिट दूसरा यूनिट कंज्यूम किया, तो उससे मिलने वाली टोटल यूटिलिटी हमारी 15 थी. एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, 15 माइनस 10, 5. ओके. अब जब हमने सेम कमोडिटी का थर्ड यूनिट कंज्यूम किया, तो हमारी टोटल यूटिलिटी जो मिली वो है 18 यूनिट. एंड मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 18 माइनस 15 दैट इज 3. राइट. जब फोर्थ यूनिट कंज्यूम की, तो टोटल यूटिलिटी हमारी हो गई 20 एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, 20 माइनस 18 दैट इज 2. अब मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ, मार्जिनल यूटिलिटी का कॉलम देखो. यहाँ पे देखो, पहले हमें जब हमने सेकंड यूनिट कंज्यूम किया था, तो हमें जो यूटिलिटी मिल रही थी, मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 5 थी. जैसे ही हमने एक और यूनिट कंज्यूम किया, तो हमारी जो यूटिलिटी उस एक्स्ट्रा यूनिट से जो हमें यूटिलिटी मिली वो 3 थी. अब जैसे मैंने एक और यूटिलिटी और एक और यूनिट कंज्यूम किया, तो अब वो एक्स्ट्रा यूनिट से मुझे मिलने वाली यूटिलिटी क्या हो गई, डिक्लाइन होकर के 2 हो गई. तो पहले मुझे एक यूनिट से 5 यूनिट यूटिलिटी मिल रही थी. उसके बाद मुझे जब नेक्स्ट मैंने और एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम किया, तो अब उस एक्स्ट्रा यूनिट से मुझे सिर्फ 3 ही यूटिलिटी मिल रही थी, 3 यूनिट ही. नाउ फिर मैंने एक और एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम किया, तो उस एक्स्ट्रा एक यूनिट से मुझे फिर सिर्फ 2 ही यूनिट यूटिलिटी मिल रही थी. तो क्या हो रहा है, इसका मतलब कि मैं जैसे जैसे अपना कंजम्पशन बढ़ा रही हूँ, मेरा मार्जिनल यूटिलिटी कम होता जा रहा है. ओके. सो दिस इज व्हाट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स. Here are the few assumptions of diminishing marginal utility. बहुत सिंपल है, बस एक बार रीड करना है ये आपको. ओके. सो एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अब ये लॉ कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, लाइक हॉबीज में. जैसे बहुत लोगों की हॉबी होती है कॉइन कलेक्ट करना, स्टैम्प कलेक्ट करना. तो यहाँ पे क्या होगा कि ये लॉ नहीं अप्लाई होगा. जैसे ही हमारा कलेक्शन हम बढ़ाएंगे, कॉइन का कलेक्शन या स्टैम्प का कलेक्शन बढ़ाएंगे, तो हमें उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा. ओके. तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल नहीं है. मनी एंड नॉलेज. अब ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जब ज्यादा पैसा आता है तो हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो यहाँ पे भी एप्लीकेबल नहीं है ये लॉ. नॉलेज, सेम विद नॉलेज. हम जितना पढ़ते हैं हमें उतना और पढ़ने का मन करता है ना. तो यहाँ पे भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है. अब कुछ कुछ गुड जैसे टेलीविजन एंड रेफ्रिजरेटर हो गया, इनका कंजम्पशन रेगुलर तो नहीं है, कंटिन्यूअस तो नहीं है ना. तो इन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा कंटिन्यूअस कंजम्पशन के बारे में बात करता है.
अब टेलीविजन और रेफ्रिजरेटर तो हम रोज रोज नहीं कंज्यूम कर सकते ना, रोज रोज तो नहीं खरीद सकते, तो ये इन केसेस में भी इनएप्लीकेबल है। नाउ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. So what is consumer equilibrium? It is a situation in which the consumer is deriving maximum satisfaction from his given income and no intention to change his present pattern of consumption. क्या मतलब हुआ इसका? कंज्यूमर को मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इन हिज बजट, ठीक है, वो स्टेट जहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसके बजट में, और उसका कोई इंटेंशन नहीं है अपने कंजम्पशन पैटर्न को चेंज करने का, उसे हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। उस स्टेट को या उस पॉइंट को हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब वी कैन डिस्कस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू सिचुएशंस, ओके, इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। फर्स्ट वन इज इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। अब इस केस में कंज्यूमर के पास दो चॉइसेस हैं, या तो वो कमोडिटी एक्स परचेज कर ले, या तो वो अपनी मनी इनकम सेव करके रख ले, है ना, या तो वो कमोडिटी खरीद सकता है या तो वो अपनी मनी इनकम सेव करके रख सकता है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी? यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन वो होगी जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है। इस कंडीशन पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है। अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू एम यू एक्स, मतलब इनका फ्रैक्शन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ एक्स should be equals to the marginal utility of money, sorry MUM, marginal utility of money। ये कंडीशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। अब सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या करते हैं, MUM को इक्वल टू मान लेते हैं MUM इज इक्वल्स टू 1, ठीक, MUM इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे क्या आया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू MUM। अब MUM हमारा क्या हो गया, इक्वल्स टू 1 हो गया, तो MUX इज इक्वल्स टू PX हो गया, है ना, क्योंकि जब इसको MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUM है, MUM इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू 1, सो MUX इज इक्वल्स टू PX, ओके। सो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, वन इज व्हेन मार्जिनल, वन पॉसिबिलिटी इज MUX इज ग्रेटर देन PX, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो है वो उसके प्राइस से ज्यादा है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में कंज्यूमर और ज्यादा गुड खरीदेगा, है ना, और ज्यादा कमोडिटी एक्स खरीदेगा। तो और एज पर एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जितना ज्यादा हम कंज्यूम करेंगे उतनी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होने लग जाएगी। तो ये तब तक कंज्यूमर परचेज करता जाएगा जब तक MUX इज इक्वल्स टू PX नहीं हो जाता, क्योंकि हम जब ज्यादा खरीदेंगे, जब MUX ग्रेटर है PX से, तो हम ज्यादा कमोडिटी एक्स की खरीदेंगे, ज्यादा कमोडिटी खरीदेंगे एक्स की, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या करेगी, डिक्लाइन होने लग जाएगी, डिक्लाइन। और हम तब तक खरीदेंगे जब तक वो डिक्लाइन होकर के उसके प्राइस के इक्वल ना आ जाए। एंड द सेकेंड कंडीशन इज, सेकेंड पॉसिबिलिटी इज व्हेन MUX इज लेस देन PX। अब इस केस में क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है ऑफ एक्स जो है वो प्राइस ऑफ एक्स से कम है, तो इस केस में क्या करेगा कंज्यूमर, इस केस में कंज्यूमर कम गुड खरीदेगा, कम क्वांटिटी खरीदेगा एक्स की, और वो अपना पैसा अपने पास ही रखेगा, सेव करके रखेगा। वो कट ऑफ करता जाएगा, जो पैसा वो अभी तक कमोडिटी एक्स को खरीदने में लगा रहा था वो उसको कट ऑफ करेगा और उस पैसे को सेव करना स्टार्ट कर देगा, तब तक जब तक MUX इज नॉट इक्वल्स टू PX। क्योंकि जैसे वो इसको खरीदना, कमोडिटी एक्स को खरीदना कम कर देगा, तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ने लग जाएगा, ओके। नाउ इन केस ऑफ मोर देन वन कमोडिटी, ओके,
तो जब एक से ज्यादा कमोडिटी होती है तो वहां पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, ये सपोज करो हमारे पास एक से ज्यादा कमोडिटी एक्स है, वाई है, जेड है एंड सो ऑन एन तक, ठीक है। तो वहां पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी, फ्रैक्शन ऑफ और रेशियो ऑफ देयर मार्जिनल यूटिलिटीज एंड प्राइस इक्वल होने चाहिए, ठीक है। x marginal utility of commodity x and price of commodity x and sorry ratio of marginal utility of x and its price is equals to the marginal utility of commodity y and its price ratio of marginal utility of commodity y and its price, ठीक है। ये कंडीशन जब होगी तभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। फर्स्ट वन इज हमारा जब सपोज कर लो सिर्फ दो ही कमोडिटीज हैं, फॉर सिंप्लिसिटी लेट्स सपोज देयर आर ओनली टू कमोडिटीज, MUX PX इज ग्रेटर देन MUY PY। एक तो ये कंडीशन हो सकता है कि हमारा जो सेटिस्फैक्शन MUX सॉरी ये जो रेशियो है कमोडिटी एक्स और उसके प्राइस का, ये ग्रेटर हो कमोडिटी वाई और उसके प्राइस से, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में कंज्यूमर क्या करेगा, वो कमोडिटी एक्स और ज्यादा खरीदेगा। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में कि व्हेन वी कंज्यूम मोर ऑफ अ कमोडिटी इट्स मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइंस, है ना। मतलब जितना ज्यादा हम कंज्यूम करेंगे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। तो जब हम एक्स कमोडिटी ज्यादा खरीदेंगे और ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होने लग जाएगी। और ये तब तक खरीदते जाएंगे, इस कमोडिटी एक्स को तब तक खरीदेंगे जब तक यहाँ पे इक्वालिटी नहीं मेंटेन हो जाती है। MUX upon PX is not equals to MUY and PY। जब तक ये इक्वालिटी नहीं मेंटेन हो जाती तब तक हम कमोडिटी एक्स को खरीदते रहेंगे, ओके। एंड द सेकंड पॉसिबिलिटी इज व्हेन MUX upon PX is less than MUY upon PY। अब इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम MUY को खरीदने लग जाएंगे, MUY कमोडिटी को खरीदने लग जाएंगे और तब तक खरीदेंगे जब तक इसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होकर के MUX मतलब एक्स कमोडिटी के मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर नहीं आती। तो हम तब तक इसको खरीदेंगे जब तक यहाँ पे इक्वालिटी नहीं मेंटेन हो जाती है, ओके। फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।